بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ ایوننگ ویئر ایور یو آر. دس از نعیم مشتاق ہیئر. اور آج ہم کافی ود فرینڈس کی سیریز میں عبدالرافع بھائی کے ساتھ حاضر ہیں. ہم آئے تھے یہاں پہ مختلف جگہوں پہ جگہ ڈھونڈتے رہے ہیں کافی کے لیے, کہاں آرام سے بیٹھ کے ہم ریکارڈنگ کر سکیں, مگر یہ سب سے پرسکون جگہ ملی ہے. اور یہاں پہ سکون کا یہ حال ہے کہ اگر آپ مائک کو اپنے کالر پہ لگائیں تو آپ کی آواز باقی آوازوں میں دب جاتی ہے. اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کو ہاتھ میں پکڑ کے منہ کے قریب لائیں تاکہ آپ کو ہماری آواز آسانی سے سمجھ آ سکے. تو ہم اسی طرح بس یہ تھوڑا تجربہ کریں گے اور نیکسٹ کسی اور جگہ رافع بھائی سے پھر کسی اور جگہ گھر پہ یا کسی اور جگہ بھی بیٹھ کے ایک اور ایپیسوڈ ریکارڈ کریں گے. تو یہ ہماری, آپ کو جو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میری اس سیریز میں کافی ود فرینڈز میں بڑے بھائی جان اور چھوٹے بھائی جان کی کیٹیگری ہے. تو یہ بڑے بھائی جان والی کیٹیگری میں آتے ہیں عبدالرافع بھائی. تو آج ان سے گپ شپ کریں گے. میرا انٹرویو کرنے کا پرپز کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے جب مفت میں کافی پینی ہوتی ہے اور میرے پاس بہانا چاہیے ہوتا ہے میں کسی کو پکڑ لیتا ہوں, میں کافی پی لیتا ہوں, اس کا انٹرویو ہو جاتا ہے تو میری مفت خوری بھی ہو جاتی ہے اور ان کا یعنی کہ دل خوش بھی ہو جاتا ہے. کافی پینے کا بہانا ہے, اس معنی ڈسکشن ہو جاتی ہے. ہاں جی, کافی کے تو موسٹ تو جو بھی کافی پیتا میرے ساتھ بل وہی پے کر رہا ہوتا ہے, میں نہیں کرتا بل پے. چلیں مزید پکا کر لیجیے, کسی کے ذہن میں تھا تو وہ بھی کلیئر. نہیں بڑے پیارے شخصیت ہیں. تو بہرحال عبدالرافع بھائی پہلے تو یہ ہے کہ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور ان کی شخصیت ایسی ہے, یہ اسپیکر بھی ہیں, ٹرینر بھی ہیں اور ہم جیس شخصیت ہیں. سب سے پہلے روایتی سا رسمی سا سوال کہ بھائی جان میرے حلقہ احباب میں جو لوگ آپ کو نہیں جانتے ان تک اپنا تھوڑا سا مختصر سا تعارف کروائیں. آئی ایم شیور کہ آپ جو بھی تعارف کروائیں گے وہ تھوڑا ہی ہوگا, مگر پھر بھی آپ کی زبانی تھوڑا سا تعارف ہو جائے تاکہ باقی حلقہ احباب میں جو میرے لوگ ہیں وہ آپ سے شناسا ہو جائیں, اور جو ہم کو جانتے ہیں دونوں کو وہ ہمیں پہلے ہی جانتے ہیں, تو ان کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بھائی, بہت بہت شکریہ. کافی عرصے سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے تو یہ سبھی انٹرویو کی صورت میں بن گئی ہے. تو یہ تو ایک بلیسنگ ان ڈسگائز والا معاملہ ہے. نعیم بھائی سے میں حال میں سال 2 سال پہلے ایک جگہ ملاقات ہوئی تھی اور ایک کانفرنس ہی تھی ہماری. ہاں بالکل. تو بس اس کے بعد سے تعلقات تو ہیں, ملنا ملانا رہا ہے 1-2 جگہ پہ, لیکن بیٹھ کے تفریح نشست نہیں ہو سکی. تو بہانے وہ بھی ہو جائے گی. اور میرا تعارف یہ ہے کہ جی پلیز ایک سیکنڈ لے آئیے یہاں پہ. یہ ہماری مفتخری کا نام ہے. کافی آگے جی, چلے تھینک یو سو مچ بھائی. تھینک یو. اور میں بیسکلی آئی فرام نوابشاہ. اکیڈمک بیک گراؤنڈ میرا فائنانس آڈٹ کا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور سنس 19 آئی ایم ان اسلام آباد. نیٹو از نوابشاہ ٹاؤن, نوابشاہ سٹی. ٹھیک ہے. اور ساری میری اکیڈمک سی اے وغیرہ کراچی سے ہے. 99 میں اسلام آباد میں آ گیا تھا اور پھر یہاں آ کے میں نے MBA فائنانس اور MPhil اکیڈمک چیزیں کی ہیں. مور دین 25-30 ایئرس کا کارپوریٹ کا میرا ایکسپیرینس ہے. اور 20-25 سال جاب کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ جاب کرنا کوئی مزیدار گیم نہیں ہے اور میں فٹ نہیں سمجھتا اپنے آپ کو. تو یہاں پر کیا چینجز آئیں کیا وہ پھر بعد میں اگر پوچھیں گے نہیں بھائی تو بتاؤں گا میں کیوں میں نے جاب چھوڑی اور کیوں میں ڈیولپمنٹ سیکٹر یا پبلک سیکٹر یا سیلف امپلائڈ موڈ میں آیا ہوں. اور پھر اس کے بعد میں نے رفا یونیورسٹی جوائن کی ایز اے کنسلٹنٹ. مختلف میں وہ فائنانس کے آڈٹ کے اس کے پروجیکٹس کرتا رہتا ہوں کنسلٹنسی کے. اور رائٹ ناؤ آئی ایم ورکنگ ایز اے ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر. اور IT کے کچھ پروجیکٹس ہیں, کارپوریٹ ٹرینر بھی ہوں, سافٹ اسکل ٹرینر بھی ہوں. مین میرا موٹیو ہے کہ جو ایتھیکل ویلیوز ہیں, جو آپ کی فیملی پیرنٹل جو ویلیوز ہیں جو ہمارے گھر کا خاصا ہوا کرتی تھیں وہ لیک کر رہی ہیں ان پرسنل لائف بھی اور پروفیشنل کارپوریٹ لیول پہ بھی. تو میں کوشش کرتا ہوں کارپوریٹ لیول پہ بھی اور پرائیویٹ لیول پہ بھی اور اسکول کالجز لیول پہ بھی ان چیزوں کو ریوائیو کیا جائے اور ان کی بلیسنگ کا بتایا جائے کہ ہر چیز ٹریڈیشنل جو چیزیں چل رہی آ رہی ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں, ان کا موڈ. اب پیرنٹنگ کا اسٹائل بھی چینج ہو گیا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ان پہ میں کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور اسی حوالے سے نعیم بھائی سے ملاقات ہوئی تھی. ان کا تو خیر ماشاء اللہ بڑا رچ وہ ہے. تو اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں. تو کوشش میں کرتا ہوں کہ سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ایتھیکل ویلیوز, ویلیو بیس مینجمنٹ اور آرگنائزیشن گورننس کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں یا اس میں کوئی ویلیو ایڈ کر سکوں. تو اس حوالے سے میں
रहता हूँ, बाकी गुफ्तगू से गुफ्तगू निकलेगी तो फिर बात कहीं से कहीं पहुँच ही जाएगी। तो ये थोड़ा सा हम थोड़ा आपकी गुफ्तगू के बहाने मुझे जो वक्फा मिला मैंने अपनी कॉफ़ी बना ली है, हम भी आप अपनी बना लें। हम माइक रख के कॉफ़ी बना लें, फिर उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। आप में से अगर किसी का भी दिल करे कॉफ़ी पीने को तो मुझे इनवाइट कर सकता है, मोर देन वेलकम। इस वक्त हम F6 में कॉफ़ी शॉप है, क्या नाम है इसका? एट्रियो नहीं, एट्रियो नहीं, सॉरी, एट्रियो से निकले थे। ये कौन सी है? कॉफ़ी बीन्स F6 में, जो कोसार की तरफ मुड़े तो मुड़ने से पहले जो चौक है उसका राउंड अबाउट उसके कोने पे है ये, हम वहाँ बैठे हैं इस वक्त। कॉफ़ी बीन्स एंड टी लीव्स, यस। अच्छा राफे भाई, आप साथ साथ गुफ्तगू करते हैं। आपका मैंने ये एक्सपोजर देखा है कि आप कंसल्टेंट भी हैं फाइनेंस में, और आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, और आप ट्रेनर भी हैं जी। तो पहले कुछ ट्रेनिंग के हवाले से बात करते हैं। पिछले दिनों आपकी एक अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल में एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग थी जी, और मैंने इसमें देखा बहुत ज़्यादा सीनियर लोग वहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर, टॉप मैनेजमेंट CFO भी थे और वाइस चांसलर भी थे, VC भी थे इसमें। माइक भी ले लें साथ साथ। अच्छा, हाँ सॉरी, वहाँ पे काफ़ी सीनियर मैनेजमेंट थी, एकेडमिक साइड से भी वाइस चांसलर भी मौजूद थे, CEO साहब भी हसन भी मौजूद थे, और HR के टॉप में, और मेडिकल के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स भी मौजूद थे, और सप्लाई चेन से रिलेटेड HR के, प्रोक्योरमेंट के, एडमिनिस्ट्रेशन के, लॉजिस्टिक के, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आर्गूमेंट तो स्टार्ट ही गुफ्तगू आर्गूमेंट क्या उससे होती है। तो एक बड़ी टीम थी, अच्छी टीम थी, सीजन 10-10 साल का एक्सपीरियंस, 15-15 साल का एक्सपीरियंस, तो मुझे भी सीखने का मौका मिला। ट्रेनिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि आप सीखते भी ज़्यादा हैं, थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड करते हैं, लेकिन सीखते ज़्यादा है, जो मेरी पर्सनल वो है। ऐसे ही है जी। तो ये बताएं कि वो जो आपने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सिखाई या पढ़ाई या समझाई, तो आपके नज़दीक अच्छे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर की या अच्छे ज़िंदगी में मुश्किलात को हल करके आसानियाँ ढूंढने का जो फ़न है वो जिन लोगों में पाया जाता है, उनकी अलामतें क्या हैं? कैसे पता चले कि ये उन लोगों में से हैं जो आसानियाँ तकसीम करते हैं या उन लोगों में से हैं जो मुश्किलात तकसीम करते हैं? मेरी नज़र में जो जिनमें पेशेंस है ना, और सुनने का मादा है, लिसनिंग स्किल जिनकी बहुत अच्छी है। हम लोग अक्सर बेशतर अपनी नॉन लिसनिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल का बहुत मेन पार्ट है। कम्युनिकेशन स्किल मन हैसल कौम हमारा वीक एरिया है। हम समझते हैं हमें बोलना आता है, लेकिन हमें बोलना नहीं आता, और जो बोलना आता है वो कितना क्वालिटी बोलना आता है ये भी नहीं मालूम, और उस क्वालिटी में से कितना टू द पॉइंट, और ये एरियाज हैं जो लैक करते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज है लिसनिंग स्किल, और ख़ास तौर पर जो मेडिकल की फील्ड, आप एक मसीहाई रोल में होते हैं, आपका एक अच्छा सा जुमला बंदे को सुकून दे देता है। उसको कहते हैं लफ्ज़ों की मसीहाई। लफ्ज़ों की मसीहाई ने जादू का असर किया, कुछ तरह की चीज़ है। तो उन लोगों के लिए अगर डेस्परेट हो जाएं तो उनको, मेरे दानिश में, उनकी लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, और मामला फहम और जज्बाती मत हो। क्योंकि मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं। नॉर्मली होता ही है कि मैं बैठा हूँ यहाँ पर, तब बीइंग डॉक्टर मैं तो 10, 20, 30, 40 पेशेंट डील कर रहा हूँ, लेकिन जो 40वें नंबर पे पेशेंट आया है वो तो चाहेगा ना कि मुझे बिल्कुल ही जैसा मैं रिस्पॉन्स चाहता हूँ वो मिले, लेकिन डॉक्टर जो साइड पे बैठा है वो 39 पेशेंट भुगता के एग्जॉस्ट हुआ हुआ है। तो ये चीज़ें वो पेशेंट नहीं समझ सकेगा। डॉक्टर कभी कभी समझ जाते हैं, कभी नहीं समझते। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का रोल आता है कि किस तरह उसने एक लर्निंग या एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है या अपॉर्चुनिटी दे रहा है डॉक्टर्स को चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें इसमें काउंट होती हैं। यही हम लोगों ने डिस्कस की वहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने भी एक्सपीरियंस शेयर किए, लेकिन क्योंकि ये हाफ डे का सेशन था, तो मैं कहा सर ये थ्योरेटिकल बिल्कुल नहीं है, प्योरली सिनेरियो बेस और एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाला है। आप कोई केस स्टडी सामने बिठा के ग्रुप बना के वहीं से चीज़ें निकाली जाएं तो वहाँ से कोई थॉट निकलेगी। कोई नई चीज़ मैं आप लोगों को नहीं सिखा रहा हूँ। आप ना ये माइक इस हाथ में पकड़ लें ताकि वो आपके मुंह के सामने ये वाला हाथ होगा, ये इजी है ज़्यादा। जी थैंक यू। क्योंकि मैंने कहा आप इतने सीनियर लोग हैं, मैं आपको कोई नई चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक थॉट दे रहा हूँ कि देखने का एक एंगल दे रहा हूँ। नॉर्मली हम एक रूटीन प्रैक्टिस में रहते हैं ना, तो एक रेगुलर एक ही आई से देखने, एंगल से देखने के आदी हो जाते हैं इन चीज़ों को।
تو یہاں پہ میں نے آپ کو تو جی اچھا، اس میں آپ چونکہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا ہلکا پھلکا گپ شپ کا پروگرام ہوتا ہے، اور اس میں جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں دل لگی کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. تو اس طرح کی دل لگی کا جہاں مجھے موقع ملا میں نے رافع بھائی سے کر دی. ابھی اس میں دل لگی کا یہ ایک کویشچن ہے کہ جب بیگم سے کبھی آمنا سامنا ہو جائے تو وہاں کانفلکٹ مینجمنٹ میں اسپیکنگ سکل زیادہ کام آتی ہے یا لسننگ سکلز یا سائلنٹ سکل؟ یہ ڈپینڈ سینیریو کیا ہے. ویسے موسٹلی عقل مند شوہر تو وہی ہوتا ہے جو خاموشی اختیار کر لے، لیکن میرا شمار ان اس میں نہیں ہوتا کہ جو خاموشی اختیار کر لے. یہ آپ یا بھابھی کی غیر موجودگی میں بات کر رہا ہوں. سن رہی ہو اچھا. لیکن نارملی مطلب میں مانتا ہوں کہ خواتین میں نا اگر تھوڑی سمجھدار میں ڈیسیشن میکنگ کی اور چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، وہ ملٹیپل ٹاسکنگ ایٹ اے ٹائم ہم لوگوں سے زیادہ کر سکتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو آفس میں کام کر لے وہ زیادہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہاؤس وائف بھی اگر گھر میں کر رہی ہوتی ہے کام تو ایٹ اے ٹائم 4-5 کام وہ اس طرح کر رہی ہوتی ہے، اس کو کام ہی کنسیڈر نہیں کرتی. اچھا رافع بھائی یہ بتائیں، آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ میری شادی کو 10 سال ہو گئے تقریباً. 10 سال ہو گئے. تو کتنے بچے ہیں؟ ماشاء اللہ 4 ہیں. 4 بچے ہیں. تو شادی ارینج میرج ہوئی تھی یا لو میرج؟ کزن سے ہوئی تھی. اس سے پہلے آپ بالکل شریف تھے تقریباً. اچھا، اس تقریباً میں جتنا حصہ تقریباً والا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جواب دیں کہ جو ان لوگوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی تو ان کا وہ کسی سے آپ کہہ لینا حسن معاملات چل رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس صورت میں اگر کبھی کانفلکٹ کریٹ ہو جائے تو ابھی تو وہ بیگم نہیں بنی، ٹو بی اے وائف ہوگی نا، تو اس صورت میں بندہ کانفلکٹ میں کیا کرے؟ ٹو بی اے وائف میں تو بندے کو بہت ایڈوانٹیج ہوتا ہے کیا کہ میں سمجھتا ہوں وہاں پہ اس کی اتھارٹی زیادہ ہوتی ہے ٹو بی اے وائف والے موڈ میں ہو. لیکن میرے خیال میں کوئی بھی ریلیشن چاہے آپ کا تقریباً دوسروں کے میکسیمم کے برابر ہی لگتا ہے. ہاں لیکن نہیں بھائی اس چیز کو سمجھتے ہیں. میرا کیا ہے کوئی بھی آپ کا رشتہ ہو، چاہے وہ فرینڈشپ کا رشتہ ہو کوئی بھی ہو، اس میں ٹرسٹ اور آنیسٹی ہونی چاہیے. ہاں جی. لیول آف ٹرسٹ اور لیول آف ٹرسٹ جہاں گریجولی کم ہوتا چلا جائے گا نا، کوئی بھی رشتہ ہو، شاید آپ کے سگے بہن بھائیوں کا ہی رشتہ کیوں نہ ہو، میاں بیوی کا ہو، تو اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. تو شادی سے پہلے آپ کے جو تقریباً معاملات تھے وہ کتنے تھے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ جو میرے چند دوستوں کو باتیں معلوم ہے وہ پبلک ہو جائیں، تجبام ہو جائیں؟ نہیں تو میں بہت شریف آدمی ہوا کرتا تھا اور میری کرتا تھا. کیا مطلب؟ شادی ہوئی نا پھر تو. اچھا پھر شرافت مر گئی، پھر تابے داری آ گئی. شرافت تو تھا، شر اور آفت کا مجموعہ ہے، وہ تو کہیں نہ کہیں تو لگتی رہتی ہے، تو جہاں انوائرمنٹ ملتا ہے وہ پنپ جاتی ہے. اچھا رافع بھائی یہ بتائیں، آپ نے ایجوکیشن میں بھی کافی کام کیا ہے، یعنی ٹرینر اور ایجوکیشن دے ایک ہی کہہ لیجیے بنیاد ایجوکیشن ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر کوئی ٹیچر بن جاتا ہے، کوئی ٹرینر بن جاتا ہے، کوئی کنسلٹنٹ بن جاتا ہے. فاؤنڈیشن اس کی ایجوکیشن ہی ہوتی ہے بیسیکلی، تعلیم اور تربیت کے معاملات. تعلیم و تربیت. تو آپ یہ بتائیں، جب آپ شوہر بنے اور اس کے بعد پھر جب آپ والد بنے تو بحیثیت والد آپ کے خیال میں تعلیم اور تربیت میں جب انسان کالج میں اسکول میں اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہوتا ہے یا ٹیچرس ٹریننگ میں ٹیچر سے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہاں فیل یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی جو تربیت کے پہلو ہیں ان کی بیسس کے اوپر تعلیمی نظام ڈپینڈ کرتا ہے. بالکل. تو ماں باپ کو، اچھے ماں باپ کو وہ کون سے پہلو ہیں گھر کے تربیت کے جس پہ زیادہ فوکس دیں تو آگے چل کے اسکول اور کالج میں پرفارمنس اچھی ہو جاتی ہے؟ بالکل صحیح. اصل میں وہ جو آج کا ایک ٹرم یوز ہوتی ہے نا پیرنٹنگ، آپ کو تقریباً والے ایشو سے بچا لیا ہے. ہاں تھینک یو. چائے کافی پلاؤ نا، کچھ تو فیور دیں گے نا باقی مجھے. اصل میں نا جو آج کا ورڈ ایک اصل میں تربیت، اصل چیز تھی تربیت. تعلیم اس میں ضمن اندر تھی. پھر اس کو تربیت کو کسی بھی طریقے سے بہت سارا پروسیس، تربیت و تعلیم کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا. تربیت کو گھر میں چھوڑا گیا، تعلیم کے نام پہ اسکول کالج میں باہر بچوں کو نکالا گیا، اور پھر ویسے تربیت بھی گھر سے نکل گئی. جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہو گیا تو تعلیم و تربیت اب بچہ لاچار ہے، والدین بھی پریشان ہے، بچے بھی پریشان ہیں. ایسے ہی ہے. اب پہلے جو ہمارے ہاں جو ورڈ پیرنٹنگ تھا وہ والدین کی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی، وہ پورے اہل محلہ کی چچا ماما تایا اور جوائنٹ فیملی میں ہوتے تھے، تو گھر میں کافی بڑے لوگ ایک نظر رکھنے کے لیے اس کو لے کے چلنے والی چیزیں ہوتی تھیں. ہمارے اساتذہ
क्योंकि गांव देहातों में हमने पढ़ा हुआ है, तो वो उसी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, दिन में 5 दफ़ा पेरेंट मीटिंग उनकी हो जाया करती थी, बिल्कुल नजरों में होते थे, शज्र नसब तक पीछे से जानते थे कि ये लड़का ये नहीं कर सकता, तो वो जो बिगड़ने के चांसेस थे ना कम थे। तो वहाँ पे लर्निंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिली और माहौल भी कंपैरेटिवली इतना ख़राब का वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि जब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी इंडोर की, तो हम वो एक लिमिटेड फिजिकल गेम खेलते थे या घर में आके तालीमी ताश या चीज़ें खेलते थे। अब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो गए हैं, तो उसके हिसाब से वालिदैन को करना चाहिए। तो आजकल के बच्चों के हिसाब से मैं समझता हूँ पेरेंटिंग के लिए ना बच्चे को है ना टीचर्स को, पेरेंट्स को खुद अपनी पेरेंटिंग पे तवज्जो देनी चाहिए, उनको सिखाना जरूर है। और वैल्यूज जो है ना, बच्चा ना जिस तरह आपने देखो, जब आप समझते हैं बच्चा पैदा होता है ना, तो वो बोल के नहीं सीखता, वो देख के या सुन के रिएक्ट करता है। तो अगर उन्होंने बच्चों ने मुझे अपने बड़े भाई की इज्जत करते हुए देखा है, बड़े भाई के जूते उठाते हुए देखा है, बड़े भाई के कपड़े इस्त्री करते हुए देखा है, बड़े भाई की रिस्पेक्ट करते हुए देखा है, तो ये खुद ब खुद मेरे बच्चों में आएगा कि वो मेरे वालिद भाई की या चचा अपनी चचा की इज्जत करें। ऐसे ही है, तो यही बात घर के फैमिली मेम्बर्स में जाता है। अब मेरा घर में अगर एटीट्यूड है कि मैं घर में बड़ी बड़ी बातें करता हूँ और घर में छोटे छोटे मामला में मिसबिहेव करता हूँ वाइफ के साथ या अपने फैमिली मेम्बर के साथ, या रोज़मर्रा के वाक़ बच्चे खाने में पढ़ तो रहे होते हैं, तो एक वालिद का एक इमेज बन रहा होता है। बच्चों के लिए सबसे पहला रोल मॉडल मदर या वालिद होते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसको रोल मॉडल चेंज होते जाते हैं, लेकिन वालिद हमेशा रोल मॉडल की कैटेगरी में रहता है। अगर आपके वालिद का इमेज सही नहीं बन सका तो फिर बच्चे की शख्सियत स्प्लिट पर्सनालिटी बनती चली जाती है, और फिर उसमें आप समझते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐड होके चांसेस ठीक भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये चैलेंज तो मैं समझता हूँ कि वालिदैन को, हम जैसे जो आजकल के हैं, उनको ज़्यादा एफर्ट की और कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ चीज़ें हम लास्ट तो अपन हंसी मजाक घर पे मैं वाइफ के साथ रहता हूँ, बेटी को मैं ना जुमाना आंटी बोलता हूँ, तो छोटे से बोलना शुरू कर, बेटी चिढ़ना शुरू हो गई है, तो वाइफ बोलते हैं आप बोलते तो बोल रहे हैं ना, तो कंट्रोल करना पड़ता है चीज़ें, पहले चीज़ें नहीं थी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है घर में तो मजाक में बोलते हैं, जब बाहर जाके बच्चे बोलेंगे तो फिर हम इरिटेट होते हैं, तो बच्चे घर में ही ना बोले तो बाहर भी बच्चे नहीं बोलेंगे। तो आपको घर का माहौल सही रखना है। घर का माहौल सही रखने में मोर देन 50% जिम्मेदारी मर्द की होती है। लोग औरत का कहते हैं, नहीं, औरत की तो है लड़की, लेकिन वो औरत घर में अगर हाउस वाइफ के साथ वर्किंग वूमेन भी है फिर तो बहुत टफ जॉब कर रही है, और सिर्फ हाउस वाइफ भी है तो फिर भी आपसे ज़्यादा काम कर रही है। तो आप उसके काम को एक्नॉलेज करें। एक्नॉलेज करने का मतलब ही नहीं कि वो खाना पका रही, लेकिन आप खाना पका लें, उसको ये फीलिंग दे दें आप कि जो तुम कर रही हो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तबीयत सही नहीं है, तकलीफ नहीं, तो मैं तुम्हें जा बेजा कुछ नहीं करूँगा। एक जगह मैं बैठ के बात कर रहा था कि ना हम ख्वातीन के साथ क्या खाना पकाने में मदद करते हैं। मैं कहेगा मैं खाना शायद ना पका सकूं, लेकिन हाँ जिस दिन मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है तो उसको मैं कहूँगा नहीं कि तुम खाना पकाओ, बाजार से मंगवा लेता हूँ, नहीं तो रात का खाना भी मैं सुबह खा लूँगा, या कम से कम मैं खाने के बाद बर्तन धो दूँगा। हाँ, कभी वैसा ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं तैयार होता हूँ धोने के लिए। सबके साथ है, मानता कोई कोई है नहीं, मेरी वाइफ तो कहती है बस आप जिस दिन धो दिए ना उस दिन आपको खाना खिला दूंगी। आप साथ वैसे मैं बर्तन धोना और ये चीज़ें को ना गलत नहीं समझता, दूसरों के लिए नहीं। आपने सुन लिया मेरा, उसमें मेरे खूब रिकॉर्ड लग रहा है। वाइफ भी बोले वो बोल कुछ नहीं थी, आप ले तो मैं कहा मैं सच तो बोला ना, झूठ तो नहीं बोला। नहीं, अच्छी बात है। मैं आप कॉफ़ी पिए, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे वालिद, मैं जब छोटा सा था तो मेरे कज़न ना कहीं से ताश के पत्ते ले आए कि आए खेलते हैं, तो मुझे उन्होंने कहा बैठ के खेलते हैं ना ताश के पत्ते, उन्होंने कहा ये बड़ी इंटेलेक्चुअल गेम होती है। तो मेरे वालिद ने देखा तो उन्होंने ताश खींच ली ना, पकड़ ली, उन्होंने कहा ये नहीं खेलनी। तो उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई, बाद में समझ ये आई कि ताश के पत्तों को खेल के तौर पे खेलना तो है, मगर उससे रास्ता खुल जाता है किसी और तरफ जाने का, तो जिससे थोड़ा सा खदशा भी हो कि इससे किसी और तरफ जाने का इम्कान मौजूद है, वो भी बंद कर देते थे। तो इसलिए हमारे आजकल के बच्चों की घर में तरबियत ये है कि देखें उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनकी शौक़ की डायरेक्शन क्या है, ताकि अगर किसी जगह से किसी गलत सिमत जाने का इम्कान भी है तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसलिए आपकी बात वो बहुत दुरुस्त है कि पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम में कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती थी, सारे एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, अम्ब्रेला होता था पूरा वैल्यूज़ का जी। अब वो चूँकि बहुत ज़्यादा नहीं है, हर आदमी बिजी हो गया, कुछ इंडिविजुअलिटी में कलेक्टिव एनवायरनमेंट बदल गया। तो मेरे ख्याल में आजकल हम अपने बच्चों को इस तरह से तरबियत दें कि कलेक्टिव सुपरविज़न की कम से कम ज़रूरत पड़े और बच्चों को कॉन्शियसली
ट्रेंड करें कि उन्हें बताओ कि बुराई क्या और अच्छाई क्या. हाँ, यही वाली बात जो आप कह रहे हैं ना, पहले एक सर्टेन एज में आके हमें कुछ चीज़ें बताई जाती थी, वरना मैट्रिक इंटर तक तो वाई क्रिकेट कुछ नहीं करते थे. लेकिन आजकल मीडिया के दौर में, कार्टून की सूरत में बच्चे बहुत जल्दी उन टॉपिक्स को, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगते हैं जो हमारे सामने थोड़ी सी एक मैच्योर एज में या एडल्ट एज में सामने आती थी. अब इसका ये मतलब ये नहीं कि हम बच्चों को उन एक्टिविटीज़ से, उन चीज़ों से दूर कर दें. तो आप अपने बच्चों को जिस एज में हैं उसी एज में काउंसलिंग करना, उनको समझाना शुरू कर दें और उनकी किसी भी बात को ना वो ना करें, इग्नोर मत करें. क्योंकि अगर आपने बच्चों के सवालात के जवाब नहीं दिए तो वो कहीं और से जाके पूछेगा. ऐसे ही, और हाँ, लाजमी नहीं है जहाँ से वो पूछे वहाँ से उसको सही इन्फॉर्मेशन भी मिले. ऐसे ही है. तो कोशिश करें जिन सवालात को आप मायूस समझते हैं उनको तरीके से करें, और बेटा या बेटी जो भी है अपनी आप से या आपकी वाइफ से पूछे, ताकि एटलीस्ट किसी थर्ड पर्सन पे वो ना जाए. मतलब थर्ड ऑप्शन पे जब जाता है, जब उसको डर लगता है, मैंने बाबा से पूछा था, बाबा ने पिटाई भी करनी है, बात सुननी भी नहीं है, तो वो फिर इधर उधर जाता है और फिर ये एक विंडो ओपन करता है बच्चे के लिए कहीं और अट्रैक्शन लेने के. तो बच्चों को अपने साथ अटैच करें. मतलब फादर का रोल फादर जैसा ही होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन फ्रेंड नहीं होना चाहिए. बच्चे को हर सवाल पूछने की बहुत लाइटली मोड में पूछ ले बाबा से, लेकिन उसको ये भी मालूम है ये मेरे वालिद हैं. हाँ, थोड़ा सा रोब कायम रहना हाँ, चाहिए. मुझे, लेकिन रोब को मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव. अब आजकल तो घर में फ्रेंडली माहौल ही होता है, लेकिन वो जो बोलते हैं कि बाबा मेरे फ्रेंड है, हर चीज़ बाबा बेटे मिलकर सब चीज़ें देख रहे हैं. जिस तरह उर्दू को ड्रामा आता था, ये चीज़ तो मैंने अपने बच्चों के साथ बिठा के दिखाया है. लेकिन अब जो दूसरी चीज़ आ रही है, इसमें चीज़ें कुछ वो आ रही हैं, तो अब मैं कोशिश करता हूँ साथ ना देखूँ. बहुत शौकीन है, थोड़ा सा क्लिप देख लिया फिर हटा लिया, नहीं बाबा देखना चाह देखेंगे, टाल दिया. तो मतलब बीच में रखिए. तो ये आपको करना पड़ता है ना. तो इस तरह की चीज़ें, उनके इंटरेस्ट की चीज़ें दूसरे ला के दे दें. कलरिंग का शौक है, उसका शौक है, तो वो ला के सके. उसमें देखिए बच्चों में फुल ऑफ एनर्जी, पावर शो होते हैं बोलना, जो शरारती बच्चे होते हैं, तो आप उनको इंगेज करना होता है. बिल्कुल ऐसे. तो आप उनको गेम्स लेके दें जो उनके इंटरेस्ट की हों, तो उसमें इंगेज हो जाए तो वेल एंड गुड. लवली लवली. अच्छा, आप सब बड़े फोकस होके सुन रहे होंगे राफे भाई की बातें, मैं भी सुन रहा हूँ. हम कॉफ़ी शॉप में बैठे हैं और यहाँ पे आप कह लीजिए मोटिवेशन का ये आलम है कि हर बंदा कॉफ़ी पी के मोटिवेटेड हुआ है गुफ्तगू में ना. तो बड़ी मुश्किल से फोकस रखना एक चैलेंज की शक्ल है. तो हम ये गुफ्तगू को अभी इधर ख़त्म करेंगे. ये बस समझ लें थोड़ा सा आपको जायका चखवाया राफे भाई का. हम बाकायदा बैठ के एक मुकम्मल नशिस्त किसी पुरसकून मुकामात पे, घर पे या किसी ऑफिस में देख लेंगे हम, जो भी इजीली अवेलेबल है, ताकि शोर से हट के तो किसी एक ख़ास मौजू को पिक करके. अभी सिर्फ एक जनरल आपसे तारुफ करवाना था राफे भाई की शख्सियत का, कि इन पहलुओं पे इनकी शख्सियत जो है आप कह लीजिए डिस्ट्रीब्यूट कर रही है विजडम को, नॉलेज को, हिकमत को अपने अपने एरिया में. इनका कोई ख़ास एरिया पिक करके फिर उसके ऊपर एक थीम के साथ मैं दोबारा इनको ज़हमत दूंगा कॉफ़ी के बगैर. तो उसमें हम किसी अच्छी जगह बैठ के तो सिर्फ गपशप करेंगे ताकि थॉट प्रोसेस में आपको मज़ीद कुछ चीज़ें सीखने का मौका मिले. तो राफे भाई, जो हमारे व्यूवर्स हैं, सुनने वाले, देखने वाले, अभी हमने ज़्यादातर बच्चों की तालीम तरबियत के हवाले से बात की है और थोड़ा सा हमने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का भी बात कर ली है. जो लाइफ के अंदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट हैं, मैं चाहूँगा थोड़ी सी इस पे बात करके फिर इसको ख़त्म करते हैं प्रोग्राम को. बीइंग अ फाइनेंशियल एनालिस्ट और एडवाइज़र, फाइनेंस की ज़िंदगी में क्या अहमियत है. और बच्चों को वाज़ कहता है जब हम प्यार देते हैं ना, तो प्यार में हम फाइनेंशियल इतनी उनको फ्रीडम दे देते हैं कि वो फाइनेंस को वैल्यू पे तरजीह देनी शुरू कर देते हैं. आप सही कह रहे हैं. तो फाइनेंस और वैल्यूज़, इसमें बैलेंस कैसे कायम रखना है? इसमें ना जो मैंने अपने पेरेंट्स से भी सीखा है और वक्त के साथ सीखा है कि ना बच्चों को जो चीज़ है गिफ्ट मिले ना, तो एक सेंस ऑफ अचीविंग वाला है, रिवॉर्ड वाली फीलिंग आए कि ये हमने मेहनत से अर्न की है, बगैर एफर्ट के. जी मैट्रिक उसमें स्कूल में 3 स्टार मिल गए, जिनको ये चीज़ दिलवा दो, माओ ये चीज़ दिलवा दो, नहीं. कोई टारगेट दें बच्चों को और एफर्ट लगवाएं और उसके पीछे उनकी हो कि मैंने मेहनत से अर्न किया है. और दूसरी चीज़ ये होती है कि ना बीइंग पेरेंट मैं समझता हूँ कि बच्चों की हर जायज़ बात को ना पूरा करना ज़रूरी नहीं होता. अगर आप कर भी सकते हैं ना,
फिर भी उनको पता हो कि जब बाबा से बात करते हैं शायद वो करें शायद ना करें, अगर आपने सारी उनकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करना शुरू कर दो तो वो आपको ग्रांटेड ले लेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही है। बच्चों का IQ लेवल हम लोगों से बहुत आगे है, ऐसे ही है, बिल्कुल वो इतनी तेजी से सेंस कर जाते हैं हमारी बातों को जो हमने अभी की भी नहीं होती। ऐसे ही। अक्सर हमारे आपके साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि हमने अभी मैंने वाइफ से कोई भी बात की भी नहीं होती है और बच्चे उसके बाद से सवाल कर रहे होते तो मैं वाइफ से जिसको कहाँ से बात आ गई। हाँ तो बिल्कुल। वो चीज़ एक नॉन वर्बल भी कम्युनिकेशन वर्ड होता है, एक नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन भी प्रिवेल कर जाती है आपके उस इन्वायरमेंट में और बच्चा उसको कैच कर लेता है। तो इसमें मेरा ये है बच्चों को अंदाज़ा हो कि वैल्यूज़ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, वैल्यूज़ को रिवार्ड से लिंक मत करें, फाइनेंस से लिंक ना करें, ठीक है ना। तोहफे तहफ़ से बाबा मैंने कमरे की सफाई कर दी है तो मुझे पैसे दें, नहीं। हाँ ये कह सकते हैं कि जो अपना कमरा साफ रखेगा उसको बाबा अपनी मर्जी से चॉकलेट ला के देंगे। ऑफिस से घर पहुंचे, बाबा कमरा देखे मेरा कितना सही है, हाँ 9 आउट ऑफ 10 सब प्लस ठीक है यार, रात को कॉफ़ी आपको पिलाएंगे बाबा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों को हो कि हमने ये और कभी उन्होंने सफाई कर भी ली या नहीं आज नहीं कॉफ़ी, आज थोड़ी सी कमी लगी, कल तो तुम्हें कॉफ़ी पिलाई थी, कल तो चॉकलेट दी थी तुम्हें, आज नहीं। हाँ आज तुम ये बताओ तुम्हारे स्कूल में रिजल्ट कैसा आया। अच्छा ये मार्क्स कम आ गए, कोई बात नहीं, मार्क्स कम कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन शायद तुम्हारी तैयारी कंप्लीट नहीं थी तो देख लो मार्क्स क्यों कम आए, नेक्स्ट टाइम ना आए। मतलब बच्चों को encourage करना, वो मतलब घोड़े रेस का घोड़ा नहीं बनाना है बच्चे को, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन उसको एहसास हो क्लास में भी टॉप ऑफ द फ्रंट आपने रहना है। जी बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने सीखी है मैनर्स हवाले से। और माशाल्लाह जी, थैंक यू सो मच राफे भाई एंड थैंक यू फॉर द डिलीशियस कॉफ़ी। आपका भी अगर कभी कॉफ़ी पीने को दिल करें और अकेले हों और कोई साथ दुख बांटने के लिए कोई साथ ना हो तो खादिम हाजिर है, आप याद कीजिएगा, मैं आ जाऊँगा, बिल आपने पे करना होगा। स्लाइडर नोट। तो एनीवे हम दोबारा किसी और एपिसोड में राफे भाई के साथ हाजिर होंगे। अब के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।